spermine and zinc are present in the sperms which are antibacterial. Okay, then we have learned about the lacrimal secretion. Lacrimal means tear gland secretion. टीयर के अंदर भी एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं जिसको हम लाइजोजाइम्स कहते हैं. So all these things we have already learned in the last class. ठीक है. Then we have learned about the interferons also. Interferons are always produced during the viral infection. Then we have learned about the AMP pore formation. This is the procedure of phagocytosis. You can see the phagocytosis. This is a bacteria. It has been engulfed. Now it will go inside and afterwards the cell membrane will close. So this procedure is called as a phagocytosis. We have seen the NK cells. Then fever. Why the fever comes? So that more of the temperature will not allow the bacteria or anything else to grow. Then we have learned about the APPS also. So this were the innate immunity, skin, ciliated cells, lysozymes, coughing, vomiting, all these things. Then acquired, also called as adaptive, also called as specific. इसके कुछ characteristics say it can identify the different types of antigens. So it is diversity. Specificity. It responds to a particular target. It can memorize the first encounter and it can recognize between the self and the non-self cells. So this can be asked in the exam. What is the unique features of the acquired immunity? Then again, there are two types in that, natural and artificial. Natural means when the body produces itself. And artificial means when the body is getting ready-made produced antibodies. Okay. So natural के अंदर क्या था? First, if we are been getting some disease and our body produces the antibodies, and that is called as an acquired natural active one. For example, if somebody has got corona, okay, so corona होने की वजह से the body has itself produced the antibodies. So this can be one of the example of the acquired natural active immunity. Passive. If you have been vaccinated, see, we all are been vaccinated today. Yes, so vaccination में क्या किया जा रहा है? The virus has been introduced in the body, but in a heat-killed form. Virus का introduction किया जा रहा है vaccination के through, but in a heat-killed form. मतलब उसकी toxicity निकाल के, हाँ, उसका जो ऊपर का coat है, that has been introduced in our body in the form of vaccination. So in that case also our body is producing the antibodies. So that is called as an acquired natural passive immunity. Passive. In passive, we have been given with the help of the vaccinations. Okay. Next is the artificial one. In artificial one, we have learned the different types. First is about through इसके अंदर भी active और passive है. So active के अंदर when we are going to get the ready-made antibodies produced by the mother through placenta or from the first mother milk, that is called as a colostrum, which is very rich in antibodies. And the second one is when we are going to get a ready-made prepared antibodies through injection. So this is what we have learned till now. अभी तक हमने इतना सब पढ़ लिया है. Now the main topic starts from here. We have just learned till now the ऊपर का पार्ट पढ़ा हमने कि उसके टाइप्स क्या होते हैं. हमने अभी तक कितना ये पूरे लेसन में हमने ये क्या समझा है कि देयर इज एन एंटीजन, देयर इज अ उसके लिए प्रोड्यूस क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है. नाउ सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम. अब हम पढ़ेंगे कि कौन से सेल्स हैं जो कि इम्यूनिटी सिस्टम में मदद करते हैं. तो आपने ऑलरेडी सर्कुलेशन लेसन में पढ़ा है कि WBCs आर बीन कॉल्ड एज द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, है ना. आपने पढ़ा है कि WBC जो है उनको हम सोल्जर्स बोलते हैं. आपने ये भी पढ़ा है कि WBCs दो तरीके से काम करते हैं. Either they will be phagocytic or they will be producing the antibodies. क्या बताया मैंने?
जो हमारे WBCs हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, वो दो तरीके से काम करते हैं। या तो वो एंटीबॉडीज बनाएंगे, हाँ, कुछ WBCs ऐसे हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, और कुछ WBCs ऐसे हैं जो कि फैगोसाइटिक हैं। यस, नाउ उसमें से कौन से हैं? इफ यू रिकलेक्ट द WBC के टाइप्स, वी हैव लर्न दैट द न्यूट्रोफिल्स आर phagocytic, the monocytes are phagocytic, but we have learned about the lymphocytes also. Lymphocytes are the type of WBC which produces the antibodies. करेक्ट है कि नहीं? हमने ऑलरेडी सर्कुलेशन में पढ़ा है। यस यस। ओके, तो आपको इस लेसन में लिम्फोसाइट कैसे काम करता है, अब लिम्फोसाइट्स में भी आपने पढ़ा है कि देयर आर टू टाइप्स, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। ये हमने टी एंड बी का डिस्टिंग्विश देखा था सर्कुलेशन लेसन में, इन शॉर्ट देखा था कि टी और बी लिम्फोसाइट में क्या फर्क है। हाँ, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों भी प्रोड्यूस्ड होते हैं बोन मैरो में, बट जो जहां पर मैच्योर होता है वैसा उसका नाम पड़ा है। जैसे कि टी लिम्फोसाइट बनता तो है बोन मैरो में है, पर वो मैच्योरेशन के लिए थाइमस ग्लैंड में आता है, सो इसके लिए हम उसे टी लिम्फोसाइट कहते हैं। जबकि बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही बनता है और बोन मैरो में ही मैच्योर भी होता है, इसीलिए हम उसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि क्या सिर्फ मैच्योरेशन से इनका नाम अलग अलग हो गया है कि इनका कुछ काम भी अलग है। सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन कि टी लिम्फोसाइट कैसे काम करता है और बी लिम्फोसाइट कैसे काम करता है। समझ में आया? यस, नाउ तो ये हो गया लिम्फोसाइट की स्टोरी। तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि टी लिम्फोसाइट कैसे काम करेगा, बी लिम्फोसाइट कैसे काम करेगा। अब इसके अलावा आप एक और स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, you can see with this cartoon diagrams you can understand the thing very nicely and properly। ठीक है, एंटीजन को प्रेजेंट करने वाले सेल मतलब कुछ ऐसे भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में जो कि क्या करते हैं, ये एंटीजन्स को जहां कहीं पे भी छुपे हैं उसको लाकर दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि सी हियर इट इज एन एंटीजन है, इसको मारो, मतलब इसको कोई पकड़ के लेके आता है और बताता है कि इसको मारो। समझा? so there are antigen presenting cells also which are the part of our immunity system। understood? yes or no? now with Yes. this particular diagram you can understand the thing। देखो, B cells, they will attack the invaders outside the cell। So you can see on the top, you can see this Y-shaped structures। What is this Y-shaped structure? It is a antibody। ये जो Y shape का जो structure दिख रहा है ना बेटा, ये antibody है। तो बी सेल्स क्या करते हैं, अभी आप अपने दिमाग में नोट डाउन कर लो। बी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। बी सेल्स मतलब बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक होता है, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक होता है। समझो ए टाइप का एंटीजन आया तो उसके लिए ए टाइप का ही एंटीबॉडीज बनता है। समझो पी टाइप का एंटीजन आया तो उसके लिए पी टाइप का ही एंटीबॉडीज बनेगा। समझो डी टाइप का एंटीजन आया तो उसके लिए डी टाइप का एंटीबॉडी बनेगा। इसका मतलब क्या, जो टाइप का एंटीजन आता है वही टाइप का एंटीबॉडीज बनता है। मैंने कहा बनता है, तो इसका मतलब क्या है, बनने में कोई चीज टाइम लगता है ना? ऐसा तो नहीं है कि बस एंटीजन आज आ गया और आज ही मेरा बॉडी एंटीबॉडीज बना लेगा। नो, इट टेक्स टाइम। कम से कम दैट डिपेंड्स अपॉन योर इम्यूनिटी सिस्टम। उसको कम से कम 3 दिन लग सकता है, 5 दिन लग सकता है, 7 दिन लग सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ योर सेल्स आर स्ट्रॉन्ग। समझा मेरी बात? ठीक है। सो बी सेल्स का बेसिकली काम क्या है, टू मेक द एंटीबॉडीज एंड इट टेक्स सम टाइम। उसको थोड़ा टाइम लगता है, 3 दिन का टाइम, मिनिमम तो 3 दिन का टाइम लगता है टू प्रिपेयर दिस एंटीबॉडीज। समझा मेरी बात? अच्छा, तो इसका आप देख सकते हो डायग्रामेटिक फॉर्म में इस
इस फॉर्म में कि आई अटैक द इन्वेडर्स, इन्वेडर्स मतलब जो बाहर के लोग हैं, जो फॉरेन लोग हैं, आउटसाइड द सेल, दे आर वर्किंग आउटसाइड द सेल. व्हाट अबाउट टी सेल्स? दे अटैक द इन्फेक्टेड सेल्स. अब जो सेल को इस एंटीजन ने इन्फेक्ट कर दिया है, हाँ, जिस सेल को इस एंटीजन ने इफेक्ट कर दिया, उसके ऊपर काम कौन करता है? टी सेल्स, जो कि टी लिम्फोसाइट है. ठीक है. देन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, आप इस कार्टून फॉर्म में आप देख ही पा रहे हो कि वो क्या कर रहा है, उसको बता रहा है, एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है. यू कैन सी इन हिज हैंड एंटीजन इज देयर. एंड हेल्पर टी सेल्स वी विल बी लर्निंग, इट्स अ टाइप ऑफ अ सेल्स. जो हेल्पर टी सेल्स है उसको देखेगा, पहचानेगा, और बी सेल्स को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा कि देखो ये वाला टाइप का एंटीजन आया है, इसके लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू करो. समझा मेरी बात? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. So let us understand that in detail. So lymphocyte. So they are the main cells of our immune system. They are the part of the white blood cells which are arising from the stem cells. Hemocytoblast present in the liver of the fetus and in the bone marrow in the adult. So we have already learned where they are being formed. We have already learned that all the lymphocytes, they are produced in the bone marrow in adult. But when we talk about the fetus, so the positions are being changed. Because छोटे बच्चों का बोन मैरो इतना डेवलप नहीं हुआ रहता है. जो इन्फेंट होते हैं, जो मदर के वूम में है, उनका बोन इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ रहता है, तो उनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन टेक्स द प्लेस ऑफ डूइंग ऑल दिस फंक्शन. ओके. हेमोसाइटोब्लास्ट मीन्स व्हाट? हेमोसाइटो मीन्स क्या होता है? ब्लड सेल्स बनाने वाले. ब्लास्ट का मतलब है सेल्स. ठीक है. नाउ बी लिम्फोसाइट्स, they undergo differentiation in the gut. They are associated with the basal lymphoid tissue. जैसे कि कौन कौन से lymphoid tissue? जैसे कि tonsils, Peyer's patch. Peyer's patch कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है. टॉन्सिल तो आपको पता है हमारे बकल कैविटी में है. They are called as a basal or B humoral or antibody mediated immune system. जिसको हम AMIS भी कहते हैं. Now what do you mean by this humoral or antibody? ह्यूमर का मतलब होता है लिक्विड. मैंने आपको देखो जब आई और ईयर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ह्यूमर का मतलब बताया था. एक्वियस ह्यूमर, आपने ह्यूमर पढ़ा था ना, तो ह्यूमर का मतलब ये होता है लिक्विड फॉर्म, कोई तो लिक्विड चीज. तो अभी हमने देखा कि जो बी सेल्स होते हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. तो ऑब्वियसली दिस एंटीबॉडीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ लिक्विड फॉर्म, इन अ ह्यूमर फॉर्म, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. अंडरस्टूड? तो आपको ये सब नाम याद रखना जरूरी है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बर्सल और बी ह्यूमोरल या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. दिस कैन बी आस्क्ड एज अ फुल फॉर्म इन द बोर्ड एग्जाम. You write down the full form of AMIS. AMIS. So it will be antibody mediated immune system. Noted all of you? Please note down. Yes. Yes, ma'am. Okay. So you can see this B cells और B lymphocytes. B cells और B lymphocyte. देखो मैंने भी आपको बताया ये Y शेप का क्या है? ये सब Y शेप का एंटीबॉडी है. एंटीबॉडी का शेप कैसा है? Y शेप का है. तो समझो देखो ये बैक्टीरिया आ गया. बैक्टीरिया है मतलब एंटीजन है, तो उसके लिए अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज बनते हैं. So antibodies in the blood secreted by the B cells. They are being secreted in the blood. तो देखो इसने बनाया ना इतने सारे वाई 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 शेप बनाए हैं, ये बैक्टीरिया के लिए इतने सारे बनाए हैं, और ये कहाँ पे रिलीज किए जाएंगे? हमारे ब्लड में रिलीज किए जाएंगे. तो ब्लड में अगर रिलीज हो रहा है मतलब लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए हम इसे ह्यूमोरल कहते हैं. Now let us learn about the T lymphocytes.
T lymphocytes are differentiated in the thymus gland. Differentiated means they have been formed in the thymus gland, and therefore they have been termed as T. Okay. Now their cell-mediated immune system. Cell-mediated. क्यों मैंने बोला इसको cell-mediated? Now you can see this diagram. I attack the infected cell. Cell के अंदर काम करता है. जो इन्फेक्टेड सेल है उसके अंदर काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेल मीडिएटेड. मतलब सेल से रिलेटेड है ये बाहर कोई चीज रिलीज नहीं कर रहा, ये सेल के अंदर ही काम कर रहा है जो इन्फेक्टेड सेल है, इसीलिए इसे हम सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोथ द पॉइंट्स. बी लिम्फोसाइट्स को हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट्स को हम सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते हैं. सो AMIS and CMIS, both the points are very important. So the mature lymphocyte pass into the body fluid and circulate in the body. So जो भी mature lymphocytes है वो हमारे body fluid के साथ circulate होते हैं. Now let us learn about the clones of T cells. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि T cells कैसे काम करता है. अभी हमने पढ़ लिया कि T cells थाइमस में बनता है, T cells सेल मीडिएटेड है. अब हम पढ़ेंगे कि T cells काम कैसे करता है. तो T cells के 4 क्लोन्स होते हैं. T cells के 4 क्लोन्स होते हैं. What are they? Helper T cell, killer T cell, suppressor T cell and memory T cells. So these are the 4 clones of T cells. मतलब T cell कैसे काम करता है? अपने ये 4 क्लोन्स बना के. जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी में आएगा, हमारा T cells एक्टिवेट हो जाएगा और वो फटाफट 4 क्लोन्स बनाएगा. और 4 क्लोन्स के अलग अलग काम क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. सो सबसे पहला है हेल्पर T cell. They produce a substance or a chemical which is called as a lymphokines. Very important. Lymphokines. क्या प्रोड्यूस करते हैं? Lymphokines. Lymphokines का क्या काम है? They help in the proliferation. Proliferation का मतलब क्या होता है? Preparation of other T cells. तो जैसे ही कोई एंटीजन आएगा, T cells का हेल्पर जो सेल्स है, जैसे अभी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. नाउ सी दिस डायग्राम वंस अगेन. जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एक बताया कि एक एंटीजन यहाँ पर आया है, हेल्पर T cells क्या बनाएगा? लिम्फोकाइंस. क्या बनाएगा? लिम्फोकाइंस. लिम्फोकाइंस के बनते ही, लिम्फोकाइंस के ब्लड में आते ही व्हाट विल हैपन? बाकी के जो T cells है उनका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा. मतलब किलर बनना स्टार्ट हो जाएगा, सप्रेसर बनना स्टार्ट हो जाएगा, मेमोरी बनना स्टार्ट हो जाएगा. साथ में जो बी लिम्फोसाइट है उसको भी जगा दिया जाएगा, उसको भी स्टिमुलेट किया जाएगा कि यस देयर इज समथिंग रॉन्ग, नाउ स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज. मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा. समझ में आया? तो हेल्पर T cell खुद कुछ नहीं कर रहा है, बाकी लोगों को ये क्या कर रहा है? ट्रिगर कर रहा है, बाकी लोगों को एक्टिवेट कर रहा है कि नहीं देयर इज अलार्म. अलार्म का काम कर रहा है ये. समझ में आया? हेल्पर T cell क्या कर रहा है? अलार्म का काम कर रहा है. lymph, yes, understood beta? Yes. Okay. Yes. So helper T cell, again you can see with this particular diagram you can understand in a more better way. जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एंटीजन को बताया, हेल्पर T cell क्या हो गया? क्या बनाएगा वो? हाउ द बॉडी इज गोइंग टू कम्युनिकेट. अपने बॉडी के अंदर एक सेल दूसरे सेल से कैसे कम्युनिकेट करता है? विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ hormones, it can be in the form of enzymes, it can be a form of any chemical things. ठीक है? तो उसी तरह से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने जब एंटीजन बताया हेल्पर T cell को, तो हेल्पर T cells क्या करेगा? लिम्फोकाइंस बनाएगा. लिम्फोकाइंस बनते ही दैट इज अ सिग्नल टू द T lymphocyte to prepare the other cells also. तो जैसे ही लिम्फोकाइन ब्लड में आएगा, फटाफट किलर T cell बनने लगने का, सप्रेसर T cell का क्लोन हो जाएगा, मेमोरी T cell का भी क्लोन बन जाएगा.
साथ में बी लिम्फोसाइट भी एक्टिवेट हो जाएगा टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। साथ में मैक्रोफेजेस भी एक्टिवेट हो जाएंगे। मैक्रोफेजेस मतलब बड़े बड़े सेल्स विच इज गोइंग टू डू द फैगोसाइटोसिस, है ना। तो मैक्रोफेजेस मतलब बिग सेल्स, मैक्रो मींस बिग, फैगोसाइटोसिस मतलब कि फैगोसाइटिक सेल्स। सो दे विल फास्ट 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 स्टार्ट एनगल्फिंग देम। ठीक है, तो ये हो गया हेल्पर का काम। नाउ लेट अस मूव ऑन टू किलर का काम। किलर नाम से ही पता चल रहा है किलर है, मतलब किल कर रहा है। तो कैसे किल कर रहा है? किलर सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज साइटोटॉक्सिक। साइटो मतलब सेल को टॉक्सिसिटी कर रहा है। They directly attack and destroy the invading microbes. Invading का मतलब सेल के अंदर काम कर रहा है वापस। जो सेल के अंदर बैक्टीरिया अंदर जा चुका है उसके ऊपर ये किलर सेल्स काम करते हैं। It can be infected body cells or it can be a cancer cell. They bind to the infected cells and they secrete perforins. Very important. कैसे काम करता है? जो भी इंफेक्टेड सेल है उसको बाइंड करेगा और बाइंड करते ही क्या बनाएगा? परफोरिन्स। What this perforins is going to do? It is going to do the perforation. Perforation का मतलब क्या होता है? होल बनाना. So it will perforate, it will form a hole in the infected cell and release a substance that kills the cell. So cytotoxic T cell. Understood? Yes. नेक्स्ट है सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर, सप्रेस का मतलब क्या होता है? दबाना, रुकाना। यस, तो सप्रेस करना। तो सप्रेसर टी सेल क्या करेगा? हमारे खुद के पूरे एंटायर इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा अगेंस्ट द अटैक ऑन द ओन बॉडी सेल। हमने पढ़ा ना कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का खास बात क्या है कि वो अपने सेल्स और बाहर के सेल्स को पहचान सकता है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। तो कैसे होता है ये काम? तो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर टी सेल्स हमारे खुद के सेल्स को बचा के रखेंगे। हाँ, अब ये सारे जो चीजें बन रहा है जैसे साइटोटॉक्सिक है, साइटोटॉक्सिक अगर हमारे नॉर्मल सेल पे इफेक्ट करने लगेंगे तो भी तो सारे सेल्स डेड हो जाएंगे, समझा। बट ये सप्रेसर टी सेल्स क्या करेंगे? उसका हर एक सेल्स के ऊपर एक मार्किंग करेंगे कि नहीं बाबा ये अपने वाले सेल्स है, इनको नहीं मारना है, सिर्फ फॉरेन सेल्स को ही मारना है, और ऐसे सेल्स जिसमें ऑलरेडी कोई बैक्टीरिया उसी को मारना है सेल। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, सप्रेसर टी सेल। और फिर आता है मेजर रोल ऑफ अ मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल क्या करेगा? उसको याद करके रखेगा। आज हम सबको वैक्सीनेशन मिल रहा है। हमारा वैक्सीनेशन से हमको कैसे ये होगा कि हम कोरोना नहीं होगा? बिकॉज हमारा बॉडी उसको याद करके रखता है, उस वायरस को याद करके रखता है। तो सेकेंड टाइम जब ये वायरस आएगा अपने बॉडी में, समझो एक फर्स्ट टाइम आया, अगर हुआ है तो भी एंटीबॉडीज बने हैं, हमने वैक्सीनेशन लिया है तो भी एंटीबॉडीज बने हैं। The second encounter with the same virus or any bacteria will produce the better antibodies, मतलब बहुत फास्ट होगा, बहुत क्विक रिस्पॉन्स होगा। Understood all the things? Yes. Any doubt till here? मैम वो सप्रेसर टी सेल्स का फिर से रिपीट कर सकते हो? सप्रेसर बेटा, सप्रेस का मतलब क्या होता है? सप्रेस का मतलब क्या होता है? रोकना, रोकना या दबाना। हाँ, मतलब यहाँ पे रोकना या दबाना क्या है? जैसे कि इमेजिन करो कि आप अपने घर में बहुत सारे ये हैं सोल्जर्स हैं। अब ये सोल्जर्स को हमारे सोल्जर्स भी है एक रूम में और आतंकवादी भी है। तो अब सोल्जर्स को बताना है कि सिर्फ आतंकवादी को ही मारना है, अपने खुद के लोगों को नहीं मारना है। समझ में आया? सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ सप्रेसर। So suppressor T cell will suppress our entire immunity system against the attack on our own body cells. खुद के बॉडी सेल्स को नहीं मारने देगा, सिर्फ फॉरेन सेल्स को ही मारेगा।
ऐसा ये सप्रेसर काम करता है। समझा अभी बेटा? Yes. So there are types of lymphocytes as T lymphocytes. अभी हमने T lymphocytes के 4 क्लोन्स देखे, 4 क्लोन्स देखे, और इसे हम सेल्यूलर इम्यूनिटी भी कहते हैं या फिर सेल मीडिएटेड भी कहते हैं। बी लिम्फोसाइट्स क्योंकि वो एंटीबॉडी बनाता है इसीलिए हम उसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एनके सेल्स हमने पढ़ा था, नेचुरल साइटोटॉक्सिक अगेंस्ट द कैंसर सेल्स एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, तो ये नाम याद रखना जरूरी है। सेल्यूलर इम्यूनिटी टी सेल, ह्यूमोरल इम्यूनिटी बी सेल्स, एंड एनके सेल्स किस पे इन्फेक्ट करते हैं? दे आर बीन प्रोड्यूस अगेंस्ट द cancer cell and the virus infected cells. So types and functions of lymphocyte, again you can see the same thing in detail. T lymphocytes को ही हम T cells कहते हैं, B lymphocytes को ही हम B cells कहते हैं, और natural killer cells को हम NK cells कहते हैं. They are all the types of this lymphocytes. How they migrate? They are migrated to the lymphatic tissue and engulf the microorganisms, that is the antigens. ठीक है, and the last part we have already हमने पढ़ा है, T lymphocytes mature in thymus, B lymphocytes mature in bone marrow. Now we are going to learn about the mechanism of B lymphocyte, कि B lymphocyte कैसे काम करता है। ठीक है, अभी हमने T lymphocyte समझ लिया, अब हम B lymphocyte समझने जा रहे हैं कि B कैसे काम करता है। So B lymphocytes are sensitized directly by the antigen or with the help of a signal given by the helper T cell. या तो B lymphocyte के ऊपर ही खुद ही एंटीजन ने अटैक किया, या तो वो खुद ही सेंसिटाइज हो जाएगा, या फिर हेल्पर टी सेल्स ने उसको एक्टिवेट किया कि चलो अब उठो उठो, देयर इज सम एंटीजन। तो जो भी एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स है वो बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई करता है और क्या प्रोड्यूस करेगा? क्लोन्स ऑफ प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बी लिम्फोसाइट कैसे काम करता है? क्या बताया मैंने? बी लिम्फोसाइट जो है वो जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, हाँ, वो फटाफट मल्टीप्लाई करेगा और क्या बनाएगा? क्लोन्स ऑफ प्लाज्मा सेल, क्लोन्स ऑफ प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। अंडरस्टूड दिस मच? ये नोट डाउन करो, प्लाज्मा सेल्स एंड द बी सेल्स। अब जो प्लाज्मा सेल्स हैं, they are the one which produces the antibodies. ये जो प्लाज्मा सेल्स है ना, यही एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस अ स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन जिसको हम IG कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलते हैं ना हम। इम्यूनोग्लोब्यूलिन मींस विच आर द एंटीबॉडीज। तो इम्यूनो मतलब जो इम्यूनिटी सिस्टम में काम कर रहा है, ग्लोब्यूलिन इज अ प्रोटीन, so it's a type of a glycoprotein called as antibodies which circulate in our blood as well as the lymph. So these antibodies may bind to a cell membrane or they may be free also, that depends. इतना समझा कि बी लिम्फोसाइट जब भी एक्टिवेट होगा, जब भी स्टिमुलेट होगा, जब भी ट्रिगर होगा, वो अपने क्लोन्स बनाएगा फास्ट। कौन से क्लोन्स बनाएगा? प्लाज्मा सेल्स के क्लोन बनाएगा और मेमोरी बी सेल्स के क्लोन बनाएगा। जो प्लाज्मा सेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वही एंटीबॉडीज बनाने वाला है। अंडरस्टूड दिस मच? Yes. Yes.
So you can see with this particular diagram, you can easily understand. If you want, you can take a screenshot of this also. देखो मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ, देखो ये बी सेल्स है, एक्टिवेट हो गया है, उसने क्लोन बनाया है, मेमोरी सेल, प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल क्या करेगा, ये वाई शेप का क्या दिख रहा है, दिस आर द एंटीबॉडीज। ठीक है, तो बी सेल्स को एक्टिवेट कैसे किया जाता है, या तो एंटीजन खुद एक्टिवेट करेगा, या तो मैक्रोफेजेस। व्हाट आर मैक्रोफेजेस, अभी मैंने बताया ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जो अभी मैंने आपको कार्टून वाला फोटो नहीं दिखाया जिसमें बता रहा है कि बाबा एंटीजन आ चुका है, तो ये मैक्रोफेजेस भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, जो कि बताते हैं कि यस एंटीजन इज देयर। तो या तो मैक्रोफेजेस विच आर कॉल्ड एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, या तो एंटीजन खुद, इट विल एक्टिवेट द हेल्पर सेल्स, और फिर हेल्पर सेल्स लिम्फोकाइनिन्स की वजह से बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। या तो ये एक तरीका है, या तो ये एक रास्ता है एक्टिवेट करने का बी सेल्स को, या तो एंटीजन खुद बी सेल्स को एक्टिवेट कर सकता है। समझा मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? Yes. नो मैम, नहीं। ओके वेट, देखो एंटीजन, फर्स्ट सी दिस पार्ट, सी द कर्सर, एंटीजन खुद बी सेल्स को एक्टिवेट कर सकता है, यस और नो? यस। Yes. सो दिस इज द वन पार्ट कि एंटीजन आया और बी सेल्स एक्टिवेट हो गया, फिर बी सेल्स एक्टिवेट होगा तो वो क्लोन्स बनाएगा, मेमोरी सेल्स बनाएगा, प्लाज्मा सेल्स बनाएगा, प्लाज्मा सेल्स का काम क्या है, एंटीबॉडीज बनाना। इतना क्लियर है? Yes. हाँ बेटा, जो बोला ना, जिसने बोला ना मुझे नहीं समझा, आई डोंट नो द बॉय, आपको समझा बेटा? हाँ मैम। हाँ, ये एक तरीका है, ये एक रास्ता है कि एंटीजन आया, उसने बी सेल्स को एक्टिवेट किया, और बी सेल्स अपने दो क्लोन्स बनाता है, मेमोरी एंड प्लाज्मा। यही अभी हमने पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, तो प्लाज्मा एंटीबॉडीज बनाएगा। तो दिस इज वन पाथवे कि द बी सेल्स विल गेट एक्टिवेटेड। दूसरा पाथवे क्या है, दूसरा पाथवे क्या है, एंटीजन आया एंड या फिर एंटीजन खुद आया, या तो मैक्रोफेजेस विच आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। देखो ये वाला डायग्राम वापस, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, यू कैन सी दिस आर मैक्रोफेजेस, आपको दिख रहा है ना, बड़े बड़े सेल्स है, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, दे आर द मैक्रोफेजेस। तो या तो एंटीजन खुद आया, या तो मैक्रोफेजेस, मतलब कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने हेल्पर टी सेल्स को बताया। हेल्पर टी सेल्स अभी हमने पढ़ा ना, वो कैसे एक्टिवेट करेगा, विद द हेल्प ऑफ लिम्फोकाइंस। समझा? तो लिम्फोकाइन से भी कौन एक्टिवेट होगा, फाइनली बी सेल्स एक्टिवेट होंगे, और फिर बी सेल्स मेमोरी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स और एंटीबॉडीज बनाएंगे। अब समझा क्या? यस मैम। मैम मैं पता है क्या कंफ्यूज हो गया था कि मुझे लगा कि ये दो जो स्टेप्स है ना वो साथ में हो रहे हैं। नहीं अब नहीं नहीं, अब साथ रियलाइज हुआ में भी कि हो अलग सकते हैं। अलग है। नहीं नहीं बेटा, साथ में भी हो सकते हैं, दो तरीके हैं, साथ में भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। दैट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट, वी आर लर्निंग द टू स्टेप्स कि हमें, हमारा मेन टारगेट क्या है, बी सेल्स को एक्टिवेट करना, बी सेल्स को एक्टिवेट करना इज द टारगेट। ये बी सेल्स कैसे भी एक्टिवेट हो सकते हैं, या तो खुद एंटीजन से भी हो सकते हैं, या तो हेल्पर टी सेल्स भी करवा सकता है। ठीक है, ये दोनों प्रोसीजर साथ में भी हो सकते हैं, नो डाउट, कि कुछ एंटीजन ने बी सेल्स को डायरेक्टली एक्टिवेट कर दिया। अभी आप इसको ये मत इमेजिन करना कि ये एक सेल है, दे आर प्रेजेंट इन थाउजेंड्स, है ना। हमारा WBC कितने में प्रेजेंट होता है बेटा, दे आर प्रेजेंट इन थाउजेंड्स इन जस्ट 1 cubic mm of blood। अंडरस्टूड ना? You have learned the WBC's count कितना होता है, they have been present in 5,000 to 3,000 per cubic mm of blood। तो just in one drop से भी थोड़े में भी 5,000 से ऊपर WBCs होते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? तो you just can't imagine only one thing। तो इतने सारे बी सेल्स हैं, इतने सारे बी सेल्स में से समझो 100 बी सेल्स हैं, तो 100 बी सेल्स में से 20 बी सेल्स को एंटीजन ने खुद एक्टिवेट कर दिया, और बाकी के 80 जन को कैसे एक्टिवेट हुए हैं, वो अलग रास्ते से एक्टिवेट हुए हैं। कैसे हुए हैं, एंटीजन से या मैक्रोफेजेस ने से के वजह से हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हुआ, फिर हेल्पर ने
लिम्फोकाइनिन सिक्रीट करके बी सेल्स को एक्टिवेट किया। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। सो दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं जिसकी वजह से हमें बोलना क्या है बेसिकली कि बी लिम्फोसेल्स एक्टिवेट हो रहा है, बी सेल्स एक्टिवेट हो रहा है और वो अपने दो क्लोन्स बना रहा है। और जो उसमें से जो प्लाज्मा सेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वही एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, तो अब आप एंटीबॉडीज का भी स्ट्रक्चर पढ़ोगे। तो वापस एक बार देखो हेल्पर टी सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है, बी सेल्स ने प्लाज्मा सेल्स बनाया और प्लाज्मा सेल्स ने एंटीबॉडीज बनाया। What are helper T cells? They are the clones of T cells. Understood? Again, with the same thing, you can understand in different diagrams. See, for example, this is a virus. वायरस ने एक सेल को इन्फेक्ट किया, ठीक है। You can see the B cells. अभी देखो ये B cells बन रहे हैं. Lymphoblast, plasma cells. What they are produced? Antibodies and memory B cells. So plasma cells and memory B cells, they are the clones of this B cells. Understood? Yes. And what Yes, is the thing you can see this ऐसा ये जो दिख रहा है आपको Y शेप का, इधर देखो मेमोरी सेल बी सेल में आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे देखो ये लटका है, ये देखो ये वाला Y शेप 1 2 3 4। तो ये शेप किसके अनुसार बना है आप देख सकते हो, बी सेल्स ने यहाँ पे इसके अनुसार ये शेप बनाया है। तो दैट वी आर गोइंग टू लर्न कि फॉर स्पेसिफिक एंटीजन देयर आर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, चलो अब हम एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ते हैं कि अभी हमको पता चल गया कि एंटीबॉडीज कौन बनाता है, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स किसके क्लोन है, बी सेल्स के क्लोन है। ठीक है, अब हम एंटीबॉडीज पे जाते हैं कि एंटीबॉडीज का 3 मेन काम होता है, 3 मेन्स। ईच एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजन, ये तो मैं आपको राइट फ्रॉम स्टार्टिंग बोलते आ रही हूँ। अगर ए टाइप का एंटीजन है तो ए टाइप का एंटीबॉडी, अगर सी टाइप का एंटीजन है तो सी टाइप का एंटीबॉडी। सो देयर आर वेरी स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंटीजन के लिए कोई भी एंटीबॉडी बनता है, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, देन इसका काम कैसा है? फर्स्ट, अग्लूटिनेशन ऑफ पर्टिकुलर मैटर, दैट इज बैक्टीरिया एंड वायरसेस। अग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, प्लीज नोट डाउन। अग्लूटिनेशन का मतलब होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जैसे कोई एंटीजन के ऊपर कोई एंटीबॉडी जाता है उसे हम कहेंगे अग्लूटिनेशन। ठीक है, तो ये एक तरीका है मारने का। अग्लूटिनेशन मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। नेक्स्ट, immobilizing the mass is then engulfed by the phagocytes. तो दूसरा तरीका क्या है, फैगोसाइटोसिस, एनगल्फ करना। नेक्स्ट, ऑप्सोनाइजेशन, कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया टू फैसिलिटेट देयर सब्सिक्वेंट फैगोसाइटोसिस बाय द मैक्रोफेजेस। मतलब बैक्टीरिया के ऊपर लेबल करना, कोट कर देना कि ये बैक्टीरिया है, तो कोट किया रहेगा तो मैक्रोफेजेस को आसानी होगी कि उसके ऊपर एक मार्कर लगा दिया है, कोट कर दिया मतलब उसके ऊपर एक मार्कर लगा दिया है, तो अपने मैक्रोफेजेस को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको मार्कर से पता चलता चलो इसको एनगल्फ करना है, इसको एनगल्फ करना है, इसको एनगल्फ करना है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑप्सोनाइजेशन, मींस कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया विद सम मार्कर्स। एंड न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज वेरी सिंपल, जो भी टॉक्सिक है बैक्टीरिया ने रिलीज किया उसको न्यूट्रलाइज करना, जैसे कि टेटेनस का टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज किया जाता है, लाइक दैट। अंडरस्टूड? सो 3 तरीके से काम होता है, अग्लूटिनेशन,
opsonization, neutralization. Agglutination means direct antigen antibody reaction. Opsonization मतलब क्या होता है कि जो भी एंटीजन है उसके ऊपर एक कोटिंग लगाया जाता है. ये स्पेशली बैक्टीरिया के लिए किया जाता है, कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया, जिससे कि मैक्रोफेजेस आए और फटाफट एनगल्फ कर ले, क्योंकि उसके ऊपर मार्किंग कर दिया गया है. एंड न्यूट्रलाइजेशन मतलब जो भी बैक्टीरिया या वायरस ने टॉक्सिक रिलीज किया है उसको न्यूट्रलाइज करना. अंडरस्टूड? यस और नो? प्लीज नोट Yes. डाउन. Yes, प्लीज ma'am. नोट डाउन. सिर्फ सुनते ही मत रहो बेटा, नोट डाउन भी करते रहो, नहीं तो सब भूल जाओगे. So write down the functions or roles. First write down agglutination, second write down opsonization and neutralization. Write down fast. लिखा है बेटा? Yes or no? No, miss. अच्छा लिखा. हो जाएगा तो प्लीज बताओ. हाँ. Yes. Yes, miss. हो गया. Okay. You can see with this particular diagram, you can understand the things very nicely and properly. So you can see agglutination. You can see the antigen antibody reaction. You can see this Y shape. They are the antibodies. ठीक है? Opsonization, you can see the coating. ये बैक्टीरिया के ऊपर कोट कर दिया गया है, so that इसका फटाफट मैक्रोफेजेस हो सके. एंड न्यूट्रलाइजेशन मतलब जो भी इसने वायरस ने या बैक्टीरिया ने जो भी टॉक्सिसिटी रिलीज की है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है. Now next comes the same thing, that is antigen presenting cells. Antigen presenting cells, जो उसको प्रेजेंट कर रहा है, जो बता रहा है. So इनका काम क्या होता है? They are engulfing, they are phagocytic. जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ना, दे आर फैगोसाइटिक. दे आर बेसिकली मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस मतलब बड़े बड़े सेल्स व्हिच आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस. सो दे एनगल्फ द इन्वेडिंग पैथोजेंस एंड द प्रोसेस द एंटीजेंस. एंड प्रोसेस द एंटीजन मतलब दिखाते हैं एंटीजन को. द प्रोसेस्ड एंटीजेंस आर प्रेजेंटेड ऑन देयर ओन सरफेस. द सेल्स आर एबल टू deliver a stimulatory signals for activation of the helper T cells. So you can see that उसके हाथ में उसने पकड़ा है, तो हाथ में पकड़ा इन द सेंस उसके उस सरफेस पे वो मार्किंग कर देता है, मार्क कर देता है कि यस, हाँ मेरे पास एंटीजन है, और उसको देखते ही हेल्पर टी सेल स्टिमुलेट हो जाता है. अंडरस्टूड? इट्स वेरी सिंपल.
Yes or no? Yes. Yes. Now this is the antigen antibody reaction. So all these Y-shaped structures, you please note it nicely and properly. आप इसको ध्यान से देखो. आप इस Y-shaped structure में क्या देख पा रहे हो बेटा कि एक पूरा लाइन है with a blue spot above और एक छोटा लाइन है, एक उसके साइड में पैरेलल लाइन है जो छोटा है उसमें भी ब्लू स्पॉट्स हैं. तो इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से देखो because we are going to learn the structure of this antibodies. This is an antigen. हाँ, let us see this is an antigen और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं. So what are antibodies? They are the glycoproteins that we have already discussed. They are highly specific to a specific antigen and they are called as immunoglobulins, IgS. Immunoglobulins. They are produced in response to the antigenic stimulation. ऐसे नहीं कि कभी भी एंटीबॉडीज बन गया, जब भी एंटीजन आएगा तभी एंटीबॉडीज बनता है. यस, एंटीबॉडीज बनाता कौन है, प्लाज्मा सेल्स. प्लाज्मा सेल्स किससे बनता है, दे आर द क्लोन्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स. एक मैच्योर प्लाज्मा सेल प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज. कितना प्रोड्यूस करता है, about 2000 molecules per second. 2000 molecule per second. Very important question for the board exam. So क्या है, वापस रिपीट करते हैं. एंटीबॉडीज क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है. मतलब क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है. ठीक है. एंटीबॉडीज कौन बनाता है, प्लाज्मा सेल्स. प्लाज्मा सेल किसका क्लोन है, बी लिम्फोसाइट का. एक सेकंड में कितना बनता है, कितना एंटीबॉडीज बना सकता है प्लाज्मा सेल, 2000 मॉलिक्यूल्स बनाता है. एक सेकंड में, पर सेकंड में 2000 molecules of antibodies are produced by the plasma cells. Understood? Yes. Yes. Now the next important topic is this, the structure of this antibody. First see the structure nicely and properly. What you can see in the structure, see the labelings first. First let us see the labelings. ये जो बड़ा वाला है, this is called as a heavy chain. This बड़ा वाला, जो बड़ा वाला दिख रहा है, this is the heavy chain. जो छोटा वाला है, this is the light chain. तो एक heavy chain हो गया, एक light chain हो गया. ये blue color का, ये blue color की एक लंबी लाइन है, that is the heavy chain. ये blue color की छोटी लाइन है, that is the light chain. अब heavy chain और light chain दोनों से एक दूसरे से जुड़ा है. You can see the जुड़ा हुआ part. So how they are been bound? They are been bound with the help of disulfide bond. Heavy chain और light chain दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं with the help of a disulfide bond. और क्या आपको नजर आ रहा है, और क्या नजर आ रहा है. अब फिर वो light chain हो या heavy chain हो, जो blue वाला हिस्सा है वो सेम रहता है. It's a constant portion. ये सेम रहता है. ठीक है. फिर वो heavy chain हो या light chain हो, तो जो उसका नीचे वाला हिस्सा है, तो नीचे वाला हिस्सा जो आप ब्लू कलर में देख पा रहे हो, दैट इज अ कांस्टेंट पोर्शन. मतलब उसका शेप चेंज नहीं होता. पर जो ऊपर पर्पल कलर का हिस्सा है, फिर वो लाइट चेन का हो या हेवी चेन का हो, लाइट एंड हेवी, जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको आप पर्पल कलर में देख पा रहे हो यहाँ पे, दैट इज अ वेरिएबल पोर्शन. वेरिएबल पोर्शन मतलब it changes according to the type of antigen. It changes according to the type of antigen. Understood? इसीलिए इसे हम वेरिएबल पोर्शन कहते हैं. वेरिएबल मतलब वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द एंटीजन. समझा बेटा इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वापस एक बार देखो. हाँ,
और भी इसमें बहुत सारी चीजें समझने के लिए, पर पहले इतना एक बार स्टेप वाइज लेट अस गो। क्या देखा आपने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में? एक लंबा वाला ब्लू लाइन दिख रहा है, ब्लू वाला लाइन लंबा वाला दोनों साइड, दैट इज कॉल्ड एज अ हेवी चेन। एक छोटा लाइन दिख रहा है विच इज कॉल्ड एज अ लाइट चेन। अच्छा, तो हेवी चेन हो या लाइट चेन हो, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, और हमने क्या नोटिस किया, जो हेवी चेन है और जो लाइट चेन है उसका जो नीचे वाला हिस्सा है, हाँ, फिर वो हेवी चेन हो या लाइट चेन हो, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो कांस्टेंट रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता, उसका स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रहता है। पर हेवी चेन हो या लाइट चेन हो, जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है, जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है वो चेंज होता है, उसका शेप चेंज होता है। क्यों चेंज होता है उसका शेप? दैट डिपेंड्स अपॉन द एंटीजन, कौन सा टाइप का एंटीजन आ रहा है उसके अनुसार ये हेवी और लाइट चेन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जिसे हम वेरिएबल रीजन कहते हैं या वेरिएबल पोर्शन कहते हैं, हाँ, वो चेंज होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहले इस बार में। सो मिस, तो एंटीबॉडी उसको स्पेसिफिसिटी नहीं है ना, तो बेटा इसी के लिए तो स्पेसिफिसिटी है ना, ये वेरिएबल है तभी तो स्पेसिफिसिटी है ना। अगर बी टाइप का एंटीजन आया तो इसका शेप बी टाइप का हो जाएगा, अगर सी टाइप का एंटीजन आया तो ये वेरिएबल पोर्शन सी टाइप का हो जाएगा, अगर एम टाइप का एंटीजन आया तो ये वेरिएबल पोर्शन एम टाइप का हो जाएगा। समझा? तभी तो स्पेसिफिसिटी है ना। मिस, तो ये कौन सा भी एंटीजन को मतलब ये कर सकते? हाँ, तभी तो हमने पढ़ा ना, डाइवर्सिटी है ना, कोई भी एंटीजन को एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर कोई भी एंटीजन के लिए वो टाइप का एंटीबॉडी बनाना पड़ता है। यस यस। ठीक है, हमने तो वही सबसे पहला पॉइंट पढ़ा ना बेटा कि अपने इम्यूनिटी सिस्टम का तो ये खास बात है, डाइवर्सिटी। कोई भी टाइप का एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, फिर वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, कोई डस्ट पार्टिकल हो, या कोई भी हो, कोई भी चीज हो जो फॉरेन है, कोई भी चीज जो फॉरेन है, जिसको जो अपने बॉडी को नोन्ड नहीं है, दे आर बीन कॉल्ड एज एंटीजन। जरूरी नहीं कि वो पैथोजन ही हो, दे कैन बी सम अदर थिंग्स ऑल्सो। ठीक है ना, एंड जैसे पोलन ग्रेन्स भी एक टाइप का एंटीजन है, पोलन ग्रेन भी एक टाइप का एंटीजन है। अब वो तो बैक्टीरिया नहीं है, वो तो वायरस नहीं है। डस्ट पार्टिकल, चॉक पाउडर, दे कैन ऑल्सो बी एन एंटीजन। जैसे आप अगर डस्ट पार्टिकल में गए, आपको छींक आती है ना, क्यों छींक आ रही है? क्योंकि अपने बॉडी ने उसको क्या समझा है, फॉरेन सब्सटेंस समझा है। तो आप समझे मेरी बात, एंटीजन वर्ड इज यूज्ड फॉर अ फॉरेन सब्सटेंस जिसको अपना बॉडी नहीं पहचानता है, विच आर नॉट नोन टू द बॉडी। ठीक है, चलो नाउ एंटीबॉडी इज अ वाई शेप मॉलिक्यूल, ये तो अभी हमने डायग्राम में देखा है ना, रफली वाई शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें। ईच immunoglobulin has 4 polypeptide chain, 4 polypeptide chain, it's a protein ना। अगर हम इसे ग्लोब्यूलिन कह रहे हैं तो इट्स अ प्रोटीन, तो प्रोटीन आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स, है ना। सो ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है। तो इसमें कौन से चेन्स है? 2 हैवी चेन है, देखो 2 हैवी चेन है कि नहीं? 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन। हैवी चेन को आप H चेन भी कह सकते हो और लाइट चेन को आप L चेन भी कह सकते हो। सो 2H 2L, 2 हैवी 2 लाइट। इतना क्लियर? यस। ठीक है, अभी हमने डायग्राम में भी देखा था, हेवी एंड लाइट, हेवी एंड लाइट किससे जुड़े हुए हैं? with the help of disulfide bond. So see the next sentence. The 4 polypeptide chains are held together by the disulfide bond. You have already learned कि polypeptide में proteins are linked together with the help of disulfide bond. So it's a protein. तो protein में disulfide bond ही होगा, जिसको हम डाइसल्फाइड को कैसे लिख सकते हैं? SS बॉन्ड, है ना, 2 S, 2 सल्फाइड, to form a Y shape structure.
The region which is holding together the arms of the stem is called as a hinge. So what is this hinge part? ये वाला हिस्सा जहाँ पे कर्व हो रहा है ना, जहाँ पे ये मुड़ रहा है, जहाँ पे कर्व हो रहा है, जहाँ पे मुड़ रहा है, उसे हम हिंज कहते हैं. क्या कहते हैं? यू कैन सी दिस पार्ट हिंज. दिखा आपको हिंज? Yes. दिस इज द हिंज पार्ट. Each chain has two distinct region. Variable region जो ऊपर वाला है, जो change होता है depending upon the type of antigen, इसलिए वो specific है. और दूसरा जो constant region है वो change नहीं होता. जो वेरिएबल रीजन है वही एंटीजन को बाइंड करता है. इसीलिए जो वेरिएबल रीजन है उसे दो नाम से जाना जाता है. या तो आप उसे एंटीजन बाइंडिंग साइट भी बोल सकते हो, या तो आप उसे पैराटोप भी कह सकते हो. वेरी इंपॉर्टेंट. जो वेरिएबल रीजन है ऊपर का, जो वेरिएबल रीजन है ऊपर का, इसे हम और दो नाम भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं इसे? एंटीजन बाइंडिंग साइट भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम पैराटोप भी कह सकते हैं. अंडरस्टूड? मैम वो सेकंड नेम फिर से रिपीट करना. पैरा टोप. ये देखो ना, इधर लिखा है ना बेटा, सीधे लाइन. पैराटोप दिखा? यस मैम लिखिए. सेकंड लास्ट लाइन. यस मैम डन. दे आर बाईवैलेंट. बाईवैलेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो एंटीजन साइट है. देखो एक इधर 1 and 2, दो वेरिएबल रीजन है ना, दो वेरिएबल रीजन है, Yes. मतलब दो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, मतलब दो पैराटोप है. तो दो है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? बाईवैलेंट. तो सी ऑल द पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्या क्या बोला हमने? एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. Write down the structure of antibody. So these points are expected from you all to write. How you are going to explain the structure of antibody? सबसे पहला बोलोगे कि ये Y शेप का स्ट्रक्चर है. ठीक है? क्योंकि ये प्रोटीन है तो इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स है. कितने पॉलीपेप्टाइड चेन्स है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है. कौन कौन से हैं? 2 हैवी है, 2 लाइट है. हैवी एंड लाइट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिसके वजह से एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन गया है. और जहां पे वो लोग मुड़ रहे हैं, जहां पर वो लोग होल्ड कर रहे हैं, वो रीजन को हम हिंज कहते हैं. जो इट हैज 2 रीजन. कांस्टेंट रीजन जो सेम रहता है, वेरिएबल रीजन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एंटीजन. वेरिएबल रीजन को हम एंटीजन बाइंडिंग साइट भी कह सकते हैं क्योंकि वहीं पे एंटीजन बाइंड होता है, या तो हम उसे पैराटोप भी कह सकते हैं क्योंकि एक एंटीबॉडी में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, इसलिए हम इसे बाईवैलेंट भी कहते हैं. अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स? सी ऑल द पॉइंट्स? See all the points. Any difficulty in any of the point, please let me know.
Understood beta this much? Yes. Yes, ma'am. So you can see the blue wala part. See this diagram first. Blue wala part constant and red wala part is variable. This is the hinge. This is the antigen binding site. Now let us learn about the formation of antigen antibody complex. Antigen antibody complex. अभी देखो आप इस पहले डायग्राम को देखो ध्यान से. See the diagram nicely and properly. See, अब इसमें brown color part is heavy chain. ये bluish green part is the light chain. ठीक है. अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो कांस्टेंट है और जो ऊपर वाला रीजन है वो वेरिएबल है. अब देखो ये वेरिएबल का देखो शेप देखो. शेप देखो कैसा दिख रहा है आपको. ये एंटीजन कैसा है? लाइक अ बॉल्स, ग्रुप ऑफ बॉल्स. तो इसको पकड़ के रखने के लिए ये जो एंटीजन का शेप देखो, तो इट इज फिक्सिंग लाइक अ सोप केस. जैसे साबुन का डब्बा होता है ना, एक के अंदर एक बराबर फिक्स होता है लाइक अ सोप केस. तो वैसे ही ये वेरिएबल रीजन भी होता है कि जैसा टाइप का एंटीजन है वैसा टाइप का ये पैराटोप होगा. ठीक है, जैसा टाइप का एंटीजन है वैसा टाइप का ये पैराटोप होगा. तो देखो ये पैराटोप का शेप चेंज हुआ है कि नहीं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? Yes. ठीक है, तो पैराटोप अभी आपने समझा. पैराटोप क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट है. हाँ, और एंटीजन जो इस पे बाइंड होता है उसे हम एपिटोप कहते हैं. जो एंटीजन इस पे बाइंड होता है उसे कहा जाता है एपिटोप. तो एपिटोप प्लस पैराटोप is antigen antibody complex. Epitope plus paratope is antigen antibody complex. So what is this? First of all, इतना समझ में आ गया. अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं. So study of antigen antibody interaction is called as, that is also a branch of a zoology called as a serology. So this is also one type of study called as serology, in which we learn about antigen antibody interaction, how different antigen reacts to the different antibodies and how the interaction has been done. Each antibody is specific for a particular antigen that we are learning right from starting. The combining site of antigen is called as the antigenic determinant, which is called as the epitope. Epitope. An antigen binding site of antibody is called as paratope. एंटीजन का जो ऊपर वाला जो एंटीजन का जो हिस्सा पैराटोप के साथ जुड़ेगा, एंटीजन का जो हिस्सा पैराटोप के साथ जुड़ेगा उस हिस्से को हम एपिटोप कहते हैं. जैसे अब ये ब्लू कलर का एंटीजन देख पा रहे हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ब्लैक कलर का बॉर्डर किया है. यहाँ पे ब्लैक कलर का बॉर्डर मतलब ये वाला हिस्सा एंटीजन बॉडी को जुड़ने वाला है. तो यही वाले हिस्से को हम एपिटोप कहेंगे. समझा मैंने क्या बोला? Yes. हाँ, तो ये जो बबल शेप का जो एंटीजन दिख रहा है, इसका जो आउटलाइन आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, यही वाला हिस्सा एंटीबॉडी को जुड़ने वाला है. तो इस वाले हिस्से को हम एपिटोप कहते हैं. आप देख सकते हो यही शेप का पैराटोप भी बना है. जैसा शेप का यहाँ पे एपिटोप है उसी शेप का यहाँ पे पैराटोप का भी शेप है. तो इसको हम पैराटोप कहते हैं. तो इसी को हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं. जब एपिटोप पैराटोप पे जुड़ जाता है, जब एपिटोप पैराटोप के साथ बाइंड करता है, it forms a complex called as antigen antibody complex. So just go through all the points, note down the points.
Yes, beta, understood. Have you all noted? Yes, ma'am. Noted all the terms. You can see now with this particular diagram, you can understand the things in much more better way. The same thing has been given in your textbook also. See this antigen, antibody fits together with and binds with antigen like a lock and key. कैसे बैठता है? Like a lock and key या फिर like a soap case. Now you can see over here this diagram. देखो मैं जहाँ पे कर्सर मूव कर रही हूँ, देखो ऐसा राउंड शेप का अगर एंटीजन है तो उसके लिए ऐसा राउंड वाई शेप का एंटीबॉडी बना है. अगर समझो इसका शेप कुछ ऐसा हेक्सागोन या कुछ ऐसा कुछ अलग टाइप का है तो फिर वैसा टाइप का एंटीजन बन रहा है. समझा मेरी बात? So that depends upon which type of antigen is there. तो एंटीजन जैसा टाइप का एंटीजन वैसा टाइप का एंटीबॉडी बनेगा. So they fit like a lock and key. The body does not produce antibodies that bind to its own self antigen. Therefore, all particles that are bound to antibodies are all foreign. You can see antibodies plus antigen. This is the complex. So please note down this part also. Noted. Yes. So vaccination. So what is vaccination? What we are doing? We are giving the inactivated pathogens in a heat kill. Semi-killed. हाँ बेटा? Semi-killed. Yes. Inactivated. We can't say semi-killed beta. It is inactivated pathogen. जिस ऐसा पैथोजन, ऐसा वायरस जिसकी टॉक्सिसिटी निकाल दी गई है, ठीक है, उसकी Yes. उसके अंदर की टॉक्सिसिटी को जब निकाल के हम सिर्फ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए, स्टिम्युलेट करने के लिए, हाँ, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में, उसी को हम कहते हैं वैक्सीनेशन. ठीक है. सो पैथोजेंस को ही डाला जाता है बट इन अ हीट किल्ड फॉर्म और इनएक्टिवेटेड फॉर्म, जिससे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ट्रिगर हो जाए, क्योंकि ये फॉरेन सब्सटेंस है ना, इसको देख के अपना इम्यूनिटी सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा और उसके लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा. सो दिस इज व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ दिस वैक्सीनेशन. सो इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस या फिर एंटीजेनिक प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर पैथोजेंस to protect against a particular pathogen is called as a vaccination. जैसे आपने पोलियो का डोज लिया है बचपन में, तो पोलियो का भी क्या होता है? वायरस होता है ना? वायरस, पोलियो का ही वायरस दिया जाता है बच्चों को, सो दैट इम्यूनिटी सिस्टम ट्रिगर हो जाए और फिर पोलियो के लिए एंटीबॉडीज बन जाए, पोलियो वायरस के लिए एंटीबॉडीज बन जाए, ताकि जब सच में ही पोलियो का वायरस आए तो फिर बॉडी को ज्यादा टाइम ना लगे एंटीबॉडीज बनाने के लिए, वो तुरंत उसको मार सके, क्योंकि वो मेमोराइज करके रख सकता है. So the body's immune system protect against the pathogen. It is an efficient system.
So इसके वजह से क्या होता है, keeps the microorganism go out or gets rid of them. But some pathogens, the one the body doesn't recognize, can overwhelm the immune system. It can cause a serious illness. ठीक है, कुछ ऐसे भी इम्यून पैथोजेंस होते हैं जिसको अपना बॉडी नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता है, तो उसके वजह से कोई सीरियस इलनेस हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी सेल्स को मारने लगता है, तो उसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी सीरियस प्रॉब्लम। जब अपने ही सोल्जर्स अपने ही बॉडी के सेल्स को मारने लगेंगे तो ऑब्वियसली ऑर्गन्स डैमेज होने लगेगा। So vaccination is a way to teach the immune system as how to recognize and eliminate the pathogenic organism. Vaccination is preparing our body for the exposure to the pathogen. So why the vaccination has been done? Prevention के लिए, लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस जैसे कि मीजल्स हो गया, पोलियो हो गया, टेटनस हो गया, वूफिंग कफ हो गया, ये सबका बचपन में ही क्या हो जाता है, वैक्सीनेशन हो जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी। These are the general points about the vaccination. So basically what it is going to do, it is going to teach our immunity system how to recognize and how to eliminate the pathogen in a very faster way. So what it is, a preparation of causative agent. Causative agent मतलब एंटीजन, जिससे कोई डिजीज होने वाला है, कॉज होने वाला है, इसलिए हम उसको कॉजेटिव एजेंट बोल रहे हैं। जिससे कोई डिजीज कॉज होने वाला है, जैसे कि पोलियो वायरस से पोलियो डिजीज कॉज होने वाला है, इसलिए पोलियो वायरस क्या हो गया, कॉजेटिव एजेंट हो गया। सो प्रिपरेशन ऑफ अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ अ डिजीज स्पेशली ट्रीटेड फॉर use in vaccination in order to induce or increase our immunity system. कभी कभी रेसेम्बलेंस का भी इंट्रोडक्शन किया जाता है, जैसे जरूरी नहीं है कि पोलियो का वायरस ही हीट किल्ड फॉर्म में दिया जाए, वैक्सीन के भी अलग अलग प्रिपरेशन के तरीके होते हैं। तो कभी कभी उससे ही मिलता जुलता माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, या फिर कभी कभी वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। So it contains an agent that resembles a disease-causing microorganism or is often made from the weakened or killed microorganism. या फिर उसके सब यूनिट दैट इज प्यूरिफाइड प्रोटीन सब यूनिट से या फिर पॉलीसेकेराइड से भी बनता है वैक्सीन। सो वैक्सीन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें अलग अलग टाइप्स के कैसे बनते हैं वैक्सीन, अलग अलग डिजीज के लिए कौन से तरीके से वैक्सीन बनता है, दैट इज ऑल बीन गिवन। सो बट फॉर 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू यू डोंट हैव टू लर्न दैट इन डिटेल, आपको सिर्फ वैक्सीन क्या है यही पढ़ना है। हाँ, लेट मी टेल यू दिस पॉइंट, अभी ये वैक्सीन का बात आया तो लेट मी टेल यू, आई थिंक सो 4 or 5 years बैक व्हेन वी वर चेकिंग द बोर्ड का पेपर, ठीक है, हाँ, जब हम बोर्ड का पेपर, पहले तो सेंट्रलाइज पेपर चेकिंग, मतलब अब ये कोरोना टाइम ऐसा है, बट हम जब पेपर चेक करते हैं बोर्ड का तो इट इज ऑलवेज अ सेंट्रलाइज्ड पेपर चेकिंग, ठीक है। सो आई हैव गॉट अ पेपर इन विच आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस चाइल्ड वाज, उसने लगता है कभी नोटबुक उठाया ही नहीं था, बट आई थिंक सो इट मे बी अ गर्ल चाइल्ड, ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो कि किसका पेपर है, दैट यू ऑल नो बिकॉज ऑफ अ होलोग्राफ स्टिक। सो दिस क्वेश्चन वाज बीन आस्क्ड, explain vaccination, yeah, explain vaccine, I think so this was been asked, explain vaccine, what is vaccine, for 1 mark it was been asked, okay. So what that girl child has written, just imagine what they must, he must whoever it may be, girl था कि boy था, I also don't know, but क्या लिखा था पता है, वो जो ब्यूटी पार्लर में वैक्सीन होता है ना, WAXING,
समझा? तो उसके बारे में उसने बहुत बड़ा सा लंबा चौड़ा नोट लिखा था कि द एक्सेसिव हेयर इज बीन रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ दैट हनी एंड पता नहीं क्या 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 लिख के रखा था. सो यू ऑल प्लीज डोंट डू ऑल दिस थिंग्स. ठीक है? एज अ बायो स्टूडेंट प्लीज अंडरस्टैंड, कभी तो भी वैक्सीन प्रोनाउंसिएशन सेम है पर अलग अलग मीनिंग है. वी आर नॉट लर्निंग द ब्यूटी पार्लर वाला वैक्सीन, वी आर लर्निंग द दिस वैक्सीन जो वैक्सीनेशन किया जाता है. अंडरस्टूड? Yes. So you can see this diagram. With the help of this, you can understand this thing. So this is how vaccine ke through it has been introduced in the body. So you can see the body is producing antibodies to attack it. तो वैसे ही टाइप का जब एंटीजन वापस आएगा बॉडी में, तो बिकॉज ऑफ मेमोरी the response will be very quick and you will be able to fight against it. So please note down the definition. All of you please note down immunization, vaccine and vaccination का definition. Immunization का मतलब क्या है? Any process by which a person becomes protected from a disease. Vaccine, a product that produces immunity from a disease. And vaccination का मतलब होता है injection of a killer or a weekend. So please note down all the three definition fast. Done में. Okay, beta. So vaccination and immunization, you can see the difference. Immunization can be by giving the drops. Vaccination is by giving the injection. Please note down these two definitions also. Please, all of you note down these two definitions also. मिस तो पोलियो का वैक्सीनेशन नहीं होता है, इम्यूनाइजेशन होता है. मैम या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद से पहले इम्यूनाइजेशन को वैक्सीनेशन बोलते रहेंगे, क्योंकि बेटा आप क्यों दोनों चीज में कंफ्यूज हो रहे हो बेटा? सी वापस अभी यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया ना, इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन बिकम्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ डिजीज. तो वैक्सीनेशन इज अ पार्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन. इम्यून किया जा रहा है आपको, इम्यून किया जा रहा है. इम्यून मतलब आपके बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम अ डिजीज. सो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स. The immunization is a topic in which
All these things has been included. समझा? Yes. Yes, ma'am. इम्यून का मतलब क्या है? आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस से बचाया जा सके. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन. प्रोसेस को हम शन लगाते हैं ना, कोई भी प्रोसेस के आगे हम शन वर्ड लगाते हैं. तो इम्यूनाइजेशन मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को बताना, हाँ, उसको समझाना कि अगर ऐसा टाइप का वायरस आएगा तो तुझे ऐसे टाइप के एंटीबॉडीज बनाना है. समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. सो जरूरी नहीं है कि वो ड्रॉप ही हो. इट कैन बी वैक्सीन ऑल्सो, इट कैन बी गिविंग इंजेक्शन ऑल्सो. सो इम्यूनाइजेशन के अंदर ही आता है वैक्सीनेशन, उसी का ब्रांच है वैक्सीनेशन, गिविंग ड्रॉप्स. And vaccination means giving it. Immunization is a part of it. उसका ही part है. चलो, you have noted this part? Yes. Yes, ma'am. So they are safe. They are considered to be safe. They are been tested rigorously. ऐसा नहीं है कि बाबा एक बार बना दिया और फिर मार्केट में रिलीज कर दिया, इसके बाद कोई चेक ही नहीं करता उसको. No, it has been tested every time. Many rounds of studies are been done, examination and research has been done. ठीक है, before it has been used for a general public. The side effects are rare and बहुत ही अगर रहेगा तो भी बहुत माइल्ड रहेगा. As you have seen for the corona vaccine also, आपके पेरेंट्स ने लिया होगा, तभी आपने देखा होगा कि उसके साइड कुछ थोड़े बहुत इफेक्ट्स होते हैं कि बुखार आता है, हाँ, देन थोड़ा बॉडी पेन रहता है. ऑल दिस थिंग्स आर देयर, बट इट इज वेरी माइल्ड फॉर 1 or 2 days हार्डली. मैम अगर ये सिम्टम्स मतलब कि जरूरी नहीं होते ना, अगर कि सबको है. फॉर एग्जांपल मेरे फादर को इनमें से कुछ हुआ ही नहीं दोनों वैक्सीन लेने के बाद. सो दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपके पापा का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है ना बेटा. समझा मेरी बात बेटा? आपके पापा का सी, हमें अभी मैं आपको फिर से वही चीज समझाऊंगी बेटा कि एवरीथिंग इज ऑन योर ओन इम्यूनिटी सिस्टम. जैसे अभी मैं अगर बाहर जा रही हूँ तो बाहर ऑलरेडी बहुत सारे, सिर्फ कोरोना वायरस का डर नहीं है बेटा, बहुत सारे वायरसेस है, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं. अगर मैं क्राउड वाले जगह में जा रही हूँ तो क्या सिर्फ मुझे कोरोना वायरस का ही डर है? नो, देयर आर n number of viruses, n number of bacteria present in the air around, but I'm not getting any of that disease. ना मुझे कोई बैक्टीरिया का डिजीज हो रहा है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल टीबी है ना, टीबी हो रहा है, जो भी एयरबॉर्न डिजीज है, लेट अस से ऑल दैट एयरबॉर्न डिजीजेस, ना टीबी हो रहा है, ना कोरोना हो रहा है, ना कोई भी और राइनो वायरस हो रहा है, ना कोई भी नहीं हो रहा. तो क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम. समझा? अच्छा, अब आपने मुझे जो पूछा मैं उसका आंसर दूंगी कि हमने वैक्सीन लिया, तो वैक्सीन लिया मतलब क्या लिया हमने ये कोरोना वायरस का ही हीट किल्ड फॉर्म लिया. ठीक है, अब मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है ना, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, तो मेरा बॉडी क्या करेगा, उसके लिए ऑलरेडी उसके पहले भी शायद उसने ऑलरेडी बना के रखा होगा एंटीबॉडी. जरूरी नहीं है कि आप वैक्सीन लोगे तभी एंटीबॉडीज बनेंगे. हाँ, एंटीबॉडीज में बी प्रिपेयर्ड बिफोर ऑल्सो, विदाउट योर नोइंग ऑल्सो. क्या पता कभी तो भी वायरस आया भी होगा, बट आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उस टाइम पे बुखार नहीं आया. बुखार कब आ रहा है? जब ये वायरस ज्यादा हावी हो रहे हैं आपके बॉडी पे. समझा क्या बोला मैंने? जब दुश्मन ज्यादा हावी हो रहे तब हमें ये सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, हमें छींक आ रही है, सर्दी हो रही है, हमें बुखार आ रहा है, बट अननोइंगली भी तो ये वायरस जा ही रहे हैं ना बॉडी में. बट हमारा इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग है कि वो बुखार तक आने ही नहीं दे रहा है, मतलब इतना उन लोगों को बढ़ने ही नहीं दे रहा है बॉडी में. अब समझा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यस मैम. ठीक है, तो अगर आपके पापा को बुखार नहीं आया, इसका मतलब क्या है? ही इज हैविंग अ गुड इम्यूनिटी सिस्टम.
हाँ, और बुखार आ रहा है, that is also good, that is also good, because it is going to trigger your immunity system. जिसको बुखार आ रहा है, that means उनका immunity system इतना उसको ट्रिगर कर रहा है, और ट्रिगर कर रहा है कि चलो अब इससे क्या बन गया है, एंटीबॉडीज बन गए हैं, अब कोरोना के लिए कोई टेंशन नहीं है. और जिनको नहीं भी बुखार आ रहा है, दैट इज नॉट एन इश्यू, दैट मीन्स देयर इम्यूनिटी सिस्टम इज मोर स्ट्रॉन्गर, ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर. ठीक है. सो बेसिकली अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द थिंग. ऐसा नहीं कि सिर्फ रट्टाफाई करना है, आपको समझना है, आप उसको समझो कि वो है क्या. ठीक है. So we have learned till the vaccination today. Antigen on blood cells we will be learning next class में. हम लोग blood group जो है ना, A, B, O blood group, A blood group, B blood group, O blood group, ये हम next lecture में पढ़ेंगे. So we have learned till vaccination today. Understood all of you? yes, Yes, ma'am. So this much part you will be learning and keeping. ठीक है. आप अपना टेक्स्ट बुक ओपन करोगे, इतना पार्ट आप पढ़ के रखोगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर से मैं ब्लड सेल्स पढ़ाऊंगी, ये ब्लड ग्रुप पढ़ाऊंगी, सॉरी ब्लड ग्रुप. ठीक है. सो प्लीज मुझे याद दिलाना कि ब्लड ग्रुप से स्टार्ट करना है इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. सो आई थिंक सो टाइम इज अप, वी विल स्टॉप नाउ. ठीक है. सो गुड बाय बेटा ऑल ऑफ यू. Bye, ma'am.